question number 1, a ball is thrown from a point P which is at ground level as illustrated in figure 2.1. Okay, the initial velocity is given to you, that is 12.4 meter per second. Angle is also given to you, that is to the horizontal. The ball just passes over a wall of height h. The ball reaches the wall in 0.17 second after it has been thrown. Okay, assuming air resistance is to be negligible, calculate the horizontal distance of point P from the wall. ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. Yes, sir. तो horizontal component, okay, this is the velocity that is given to me, so we need Sir, to, इसका तो vertical component लेंगे ना हम, horizontal component तो नहीं लेंगे. नहीं हमने ये horizontal distance फाइंड करना है. So this horizontal distance is because of the horizontal component of velocity. फिर speed is equal to distance over time. Yeah, so your x will be equal to ux t हो जाएगा. This distance x is because of this horizontal component of this velocity times कितना time लगेगा, that is also given to you 0.17 seconds. Okay, so that will be equal to u is 12.4 cos 36 हो जाएगा. So इससे आपके पास times t भी t is 0.17. So इससे आपके पास आ जाएगा, that should be in meter. Got it? Yes. Okay, next part, the height h of the wall. सर h का वैसे फॉर्मूला तो ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो सर हमें इनिशियल तो पता, लेकिन हमें फाइनल नहीं पता है ना. यस, हमें फाइनल नहीं पता, तो क्या किया जाए? फाइनल जीरो तो नहीं. नहीं नहीं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. अच्छा, हमारे पास Yes, इनिशियल sir, ये वेलोसिटी देख लेंगे. या इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है, वो निकाल लेंगे हम. टाइम भी है हमारे पास. एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 9.81 है. पॉजिटिव 9.81 यस सर. ऊपर की तरफ जा रहा है. तो नेगेटिव हो जाएगा. या सो दिस विल बी माइनस 9.8. टाइम तो आपका 0.17 सेकंड्स हो जाएगा, वो तो सही है. व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? सर वो हम निकाल लेंगे ना साइन से. यस, गुड. ये आपने वो नहीं लेना, दिस ये वेलोसिटी नहीं, दिस विल बी गुड 12.4 sin 36 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी. सो वो आप सॉल्व कर लो, so you will get the final answer. Okay, next part. A second ball is thrown from point P with the same velocity as the ball in A. Okay, for this ball, air resistance is not negligible. This ball hit the wall and rebound. On figure sketch the ball from. Okay, so air resistance अभी हमारे पास that's not equal to 0. और क्या बताया उन्होंने? अच्छा, velocity सेम है but air resistance हमारे पास पहले negligible था, अब that's not equal to 0. So अब क्या होगा, आपने इसको हमने ड्रॉ करना है. So क्या हो जाएगा? That will be. एक दफा जरा नीचे करिएगा. I could not read the question properly. A second ball is thrown. ये वाला ना? Yes. A second ball is thrown from point P with the same velocity as the ball in A. For the ball, air resistance is not negligible. This ball hits the wall and rebounds. Sketch the path of this ball between point P and the point where it first hits the ground. तो ये तो आसान है. ड्रॉ कर लो. यस सर. सर मैंने ग्राफ बनाना है बेसिकली. नहीं, इस पे आपने ड्रॉ करना है, ग्राफ नहीं बनाना. आप वो पाथ ड्रॉ कर लो कि पाथ किस तरह होगा, इस तरह होगा या कुछ इस तरह कम होगा सर, इससे कम होगा. इस तरह होगा सर. यस सर, जिस तरह आप कह रहे हैं. ओके, तो इससे रिबाउंड होगी इस तरह. रिबाउंड भी करना है. नहीं सर, रिबाउंड करके तो कम नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी. कम होनी चाहिए क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी. ओके, यस सर. गुड. सो दैट्स विल बी लाइक दिस. ओके ओके, नेक्स्ट, डायनामिक्स. यस सर. Okay, state first law of motion. So a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion unless some external force acts on that body. So that is the Newton first law. Okay, second question is, a box slides down a slope as shown in figure 3.1. Okay, the angle of the slope is given to you, that is 20. The box mass is also given to you, that is 65 kg. Total resistive force are acting on the ball is constant as it slides down the slope. State the name and direction of the other two forces acting on the box. ठीक है. The angle between the slope and the horizontal is 20 degree. The box has a mass of 65 kg. The total resistive force are acting on the box
is constant as it slides down. State the names and directions of the two other forces acting on the box. Sir, एक तो weight है इसका, Good. दूसरा से normal reaction दिया. Yeah, normally it's constant force. Okay, जी बिल्कुल. Okay, the variation with time t of the velocity v of the box as it moved down the slope is shown in figure 3.1. Okay. Use data from figure 3.2 to show that the acceleration of the box is 2.6 meter per second. Okay, velocity time graph is given to you. Okay. तो सर इसमें से change in acceleration over time taken. Yeah, change in acceleration. Yeah, change in velocity divided by time. Good. तो ये ले लेंगे. So that is 6 और नीचे आपका 2 आ जाएगा, -0 आ जाएगा नीचे. ऊपर क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 0.45. 1 2 3 4 5 6 7 8. This will be 0.8. 0.8. So इसे आप find कर लो. So you will get acceleration in meter per second square. That will be 5.2 divided by 2. So 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, and 2 times 6 is 12. क्या था नीचे? Yeah, 2.6 meter per second square. So ये आपका आ जाएगा. Okay, easy है. Okay, next Yes, sir, ये part. easy है. Calculate the resultant force on the box. Resultant force on the box. F is equal to m में से निकल आएगी. नहीं, यहाँ पे आपने सारे क्योंकि फोर्सेस सर हमें को resistive force का कुछ नहीं पता. सारे फोर्सेस को इनकाउंटर करने हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा? रिजल्टेंट था या रेजिस्टर होता या रिजल्टेंट फोर्स? लेकिन सर हमें resistive force का तो पता ही नहीं है कि वो कितनी थी. सर हमें सर देखें F is equal to m से निकल ही आएगी, क्योंकि देखें हमें acceleration का भी पता चल गया, हमें mass का भी पता चल गया, तो वो रिजल्टेंट निकल आएगी. Yeah, so this will be your result. रिजल्टेंट निकले, बाकी उसमें वो ना पूछे बेशक. Yeah, and because of this resultant force, it will move down. Okay, with acceleration a, and the mass of this box is m. Okay, next part. अच्छा, determine the resistive force on the box. So resultant चीज़. force तो आपके पास आ गया. Resistive force क्या हो जाएगा? सर रेजिस्टिव फोर्स ये होगा कि मैं बताता हूँ सर. देखें, रेजिस्टिव फोर्स ये होगा कि एक उसको फोर्स से नीचे लेके आ रही है, वो लेके आ रही है बेसिकली वेट की फोर्स. ठीक है, तो वो होगी वेट, इसका निकल आएगा mg से, और ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलेगा ना वेट, तो उसको कर देंगे इनटू sin 20, तो वो फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, तो रेजिस्टिव निकल आएगी. Good. Yeah, that should be equal to W sin 20. और ये नीचे की तरफ आ रहा है. यस सर, नीचे की तरफ आ रहा है एग्जैक्टली. So आपका जो resultant force होगा, that should be equal to this W sin theta minus resistive force. एग्जैक्टली सर, रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं, तो रेजिस्टिव निकल आएगा. Yeah, so resultant force आपके पास उससे आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास वो आ जाएगा sin 20 हो जाएगा. Weight will be equal to W mg. Okay, good. Okay, next question. Define acceleration. The rate of change of velocity is known. Acceleration, state Newton first law of motion. ये already हम अभी explain कर चुके हैं. अच्छा, the variation with time t of vertical speed of a parachute falling from an aircraft is shown in figure 1.1. Okay, this figure is given to calculate the distance traveled by the parachute in the first 3 seconds of the motion. ग्राफ दिया, Yeah, graph. Yeah. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, Yes. एरिया अंडर द कर्व. Yeah, velocity time graph is given to you. हमने distance find करना है in the first 3 seconds. तो first 3 seconds तो this is 1 2 3 सिंपल. 6 7 8. एरिया अंडर द कर्व सर. Yes. So this is ये एक बॉक्स आपका ये एक बॉक्स आपका 0.4 रिप्रेजेंट करता है. एक बॉक्स कितना करता है? एक बॉक्स आपका वेट, दिस इज 10 एक्चुअली, 10 डिवाइड बाय 25 बॉक्सेस हैं. सो दैट्स विल बी इक्वल टू 5 times 2 is 10, 5 times 5 25. या 0.4 आपका वो रिप्रेजेंट करता है. बस 10 boxes, almost 9 boxes. So 0.4 times number of boxes is equal to 3 second. 3 second तक हमने वो करना है. So that's will be 3 divided by 0.4. So that's will be 30 divided by 4. So that's equal to 15 divided by 2. That's equal to 7.5. So 1 2 3 4 5 6 7 7.5 यहाँ तक आएगा.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यस सो दैट्स विल बी सो ये आपने यहाँ से वो करना है ये आपका 3 होगा एक्चुअली इसमें 3 को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है वो यही चेक करें कि स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं 3 को कि नहीं अच्छा ये तो यहाँ पे हो जाएगा बस 30 आ रहे हैं आपका एस आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा area under the curve that will be equal to this so 45 meter got it हेलो सॉरी सर, वो म्यूट हुआ था, मैंने बोल ही जा रहा था, मुझे नहीं पता चला। अच्छा तो ये आपको समझ आ जी गया सर, एरिया अंडर द कर्व 1/2 into base into height, एग्जैक्टली सर। या okay explain the variation of the resultant force acting on the parachute from time t is equal to 0.8 to time t is equal to 15 सेकंड तो रिजल्टेंट फोर्स में जो वेरिएशंस आ रही है वो हमने 0 से लेके 15 सेकंड इट मींस पॉइंट सी थोड़ा सा मुश्किल है अच्छा पहले हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, नहीं कैलकुलेट नहीं करना आई थिंक जस्ट स्टेटमेंट ही देना है स्टेट ही करनी होगी सर, फोर्स कैलकुलेट तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। नहीं कैलकुलेट एक्सप्लेन द वेरिएशन ओके आपने सिर्फ इस वेरिएशन को सर एक्सप्लेन फोर्स कम हो रही है, ऑब्वियसली फोर्स एक्सेलरेशन कम हो रही है। ओके लेट्स से दिस इज योर एरोप्लेन ओके ओके यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है ना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम है ओके सो जब पैराशूट यहाँ से जंप लगाएगा तो उस टाइम क्या होगा उस टाइम एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा ओके जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ओके ऊपर इतना वो एयर प्रेशर नहीं होगा नीचे वो एयर प्रेशर भी आ जाता है फिर तो उसकी वजह से वो आपके बॉडी पे तो वो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड फोर्स ऐड करेगा तो उसकी वजह से आपकी वेलोसिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी वो आपने देखा होगा वो एक सर्कल सा बना देते हैं 2-3 लोग जो होते हैं ना वो नीचे जब जंप लगा लेते हैं तो वो थोड़ा नीचे आके वो बिल्कुल वो उसको कहते हैं स्प्रेड ईगल पोजीशन मेरे ख्याल से। जी पता नहीं मुझे नाम नहीं आता लेकिन वो इस तरह के वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं इस तरह वो अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस वहां पे आ जाते हैं तो वहां पे आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा कम होते जाएगा और यहाँ पे आपका एक वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है अच्छा यहाँ तक हमने एक्सप्लेन करना है तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आपने क्या बताना है सर रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है ना एक्चुअली हमारे पास जो फोर्स है रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू एम ए तो एक्सेलरेशन के वो देख लो इसको एक्सेलरेशन कम हो रही है स्टार्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है स्टार्ट में ज्यादा हो रही है लेकिन सर विद टाइम तो कम होता जाएगा या तो आपने ये कहना है कि रिजल्टेंट और फोर्स ऊपर जाके तो सर मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी बिकॉज जो वेलोसिटी है वो 50 पे कांस्टेंट हो गई है फॉर अ टाइम। अच्छा आपने ये बताना है कि यहाँ तक अप टू 40 मीटर पर सेकंड जब स्पीड होगा तो उस टाइम तक वो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा यस सर बिल्कुल ओके फिर वो कम हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कम हो रहा है यहाँ पे देखो स्लोप कम हो रहा है और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपका वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो इस टाइम के लिए फ्रॉम बी टू सी आपका एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जीरो सो आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा लेकिन फ्रॉम ए टू बी आपका रिजल्टेंट फोर्स स्टार्ट में ज्यादा होगा फिर कम होता जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक हो गया सर गॉट इट ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी नहीं फिर उसके बाद वो पैराशूट को ओपन कर लेगा तो वेलोसिटी एकदम से डाउन हो जाएगी ठीक हो गया ओके बिकॉज ऑफ Fun हो द जाएगी। अपवर्ड फोर्स सो यहाँ पे फिर वो पॉइंट ई के बाद फिर वो जब नीचे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटी भी वो आ जाएगी 9.8 ग्रेविटी में आप आ जाओगे तो फिर क्या होगा वेट आपका यानी डाउनवर्ड फोर्स आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा अपवर्ड थ्रस्ट के एफ अपवर्ड फोर्स के सो यू विल गेट टर्मिनल वेलोसिटी
टर्मिनल वेलोसिटी आप गेन कर लोगे एंड टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज योर अपवर्ड फोर्स योर एयर रेजिस्टिव फोर्स विल बिकम इक्वल टू द वेट सो दैट्स व्हाई योर रेजिस्टिव फोर्स विल बिकम जीरो और आप टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आओगे सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ओके आफ्टर ई यू विल गेट द टर्मिनल वेलोसिटी और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया एक्सेलरेशन क्यों जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा है